Hello, friends. Namaste and a warm welcome. Today, in this session, we are taking up 10 questions in a stretch. So, this is a kind of a different flow. Sincerity makes a lot of difference. We all are tuned to our conditioning because of our family backgrounds and because of our own upbringing and our schooling. And that only brings sincerity and also honesty in the work. Therefore, all answers might be written with the correct idea, but they may be suitable, they may not be suitable. And that suitability is linked ultimately कि आप प्रशासनिक सेवा के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं हैं. That is the only simple thing. So let's see from that perspective. Do you agree with the view that there is a need to enact a law for ensuring judicial accountability in India? So India follows the system of independent judiciary with non-hierarchy of supreme. This non-hierarchy word is very important and it is showcasing that the answer right track पे start हुआ. Judiciary, executive, separation of power is a part of basic structure doctrine. Enacting a separate law will violate Indian judicial independence through amendments in the law, pendency of cases more than 4 crores, challenges judicial activism, overreach, collegium system and appointment of judges. चलिए आगे चलिए. The solution lies in judicial reforms. Very good. Digitization of courts and e-courts, alternate dispute resolution mechanism, mediation, conciliation, diversification of members of collegium with one government representative. अब लॉ कमीशन रिपोर्ट ने ऐसा बोला है, ठीक बात है. Active law making and efficiency of parliament to prevent instances of judicial overreach as seen in ban on firecrackers and liquor highway ban. Therefore, Indian judicial system functions on evidence and proof, fulfilling aspirations of people, delivery due justice. तो अच्छे वर्ड्स हैं, क्लैरिटी के साथ बात है और थोड़ा और पंच आएगा व्हेन यू विल टेक इट टू नेक्स्ट लेवल और लेयर. लेकिन ये बहुत ही लाइट लिखा. इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बोथ आर ऑन ट्रैक. Constitutionally reconciling fundamental rights with DPSP has been a tough stance. सही बात है. Since Indian Constitution discussed with relevant cases. तो FR and DPSP both forms crucial pillars. बहुत अच्छा लिखा आपने. केशवानंद भारती केस ने बताया, बिल्कुल सही बात है. ये बेसिक्स जो आपने डायग्राम बनाया दैट इज ऑल्सो ऑन ट्रैक. बेसिक स्ट्रक्चर बैलेंस बता दिया. फंडामेंटल राइट्स टू सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस. अब ह्यूमन नहीं, सिटीजन या फिर मतलब आप कहते हैं इंडियंस और basis of law making interpretation. ठीक है चलिए. Doctrine of eclipse said that provisions which violate will be eclipsed and not abrogated permanently. For example, fundamental rights not guaranteed to residents will continue to function like article 1929 not guaranteed to NRIs. ठीक है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थोड़ा समझाया, लेकिन और थोड़ा लूसिड भाषा आ सकती है, आएगी. गोलकनाथ केस 1967 आर्टिकल 39 बी एंड सी must not be questioned in court of law. Supreme Court upheld that fundamental rights cannot be abridged and are supreme. Except, ये आपने बता दिया, Article 14, 19 and 31 here. 24th CAA, that is Constitutional Amendment, आपने Parliament has the power to amend any fundamental right. It was not upheld by Supreme Court. 9th Schedule contains provisions that cannot be challenged in Supreme Court. केशवानंद आपने केसेस बहुत सारे बता दिए और एक दो कम भी बताते चल जाता, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स और जो डीपीएसपी वाली बात है उसको आप थोड़ा जोड़ देते तो और अच्छा से आपका आंसर निकल के आता. आपने आंसर को थोड़ा टेक्निकल बना दिया. मतलब एलिमेंट्स बहुत सारे हैं बट थोड़ा सा इलस्ट्रेशन ज्यादा होना चाहिए था. अदरवाइज देयर इज नो हार्म इन दिस आंसर. इट इज वेरी ब्यूटीफुली रिटन. चलिए आगे. लेकिन थोड़ा टेक्निकल हम कहेंगे कि ये थोड़ा और की वर्ड्स फ्रेजेस आने चाहिए थे, ब्रॉड फ्रेजेस. Discuss the functions performed by PMO and its role in shaping policy making. Very broad question. Torch bearer for coordination, cooperation and competition. बिल्कुल सही बोला. Functioning of the entire frame of Indian democracy. आप ये बता दीजिए शुरू में कि डिपेंड्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर. जिस टाइप के प्राइम मिनिस्टर होंगे वैसा पीएमओ का रोल होगा. पीएमओ का रोल कोई स्टैटिक रोल नहीं है. इट इज डायनेमिक इन नेचर. चलिए एक्सपर्टीज आपने बताया. चलिए पीएम गति शक्ति तो आपने अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हिसाब से आपने लिखा, जबकि पीएमओ तो उनके समय से पहले भी है. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव जी, कोई भी आप ऐसा कर सकते थे. ये बात ये नहीं कह रहे कि इन्हीं का बताना था, लेकिन आपने अच्छा बताया. लेकिन ये थोड़ा सा वही थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है ऐसे, और वो चीज हमें अवॉइड करनी है. चलिए आगे. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. पीएमओ सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को प्रमोट करता है. तो पीएमओ एक तरीके से डाकघर की तरह है जहां पर आम नागरिक भी पत्र लिख सकता है. चलिए आगे. Re-examining and reconsideration of provisions of Section 124A of IBC requires balance between concerns of civil liability and human rights and maintaining the sovereignty and integrity of India. तो सेक्शन 124A हम सब जानते हैं, सेडिशन.
अभी लेकिन चेंज भी हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ एम्बिग्यूटी आर मिसयूज, ठीक है, पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, न्यू लॉज आपने बात की, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन, रादर इट इज पार्ट ऑफ राइट टू डिसेंट, ठीक बात है। चलिए, आप सरकार की तो आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, देश का नहीं कर सकते आप। बात देश की है, देश और सरकार में फर्क है। आप सरकार में कमियां निकालिए, लेकिन आप देश, जो भारत की अस्मिता है, भारत की जो प्रभु, जो आप कहते हैं प्रभुत्ता है, जो उसकी अखंडता है, उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। उस पर आपको क्रिटिसाइज या क्रिटिकल होने का कोई अधिकार नहीं है। आप सरकार की बात कीजिए, आप गवर्नमेंट की बात कीजिए, गवर्नमेंट की कमियां बताइए। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट, रिफॉर्म एम्बिगुअस टर्म्स एंड स्पेसिफाई व्हाट एक्ट्स आर हम्म। कवर्ड अंडर द। हाँ बोले। नॉन पार्टीजन यूसेज टू सर इंश्योर, मैं हाँ बोल रहा था बोलो। ना कि आप जब बोले ना कि क्वेश्चन नहीं कर सकते, कंट्री कंट्री को भी कर सकते, लेकिन आप आर्म्स नहीं उठा सकते या फिर आप वैसा कुछ एलिमेंट में आप कंट्री पार्टिसिपेट को नहीं कर आप सकते जो। कंट्री को आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि कंट्री कैसे अच्छी हो सकती है। आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि साला भारत ने मुझे दिया ही क्या है, भारत है क्या। सर ये भी पार्ट है उसी में, फंडामेंटल राइट में, लेकिन नहीं उसका नहीं, बहुत ये बैलेंस है, हुआ। बहुत। हाँ बैलेंस है, हाँ, बिल्कुल। जैसे, क्योंकि आर्टिकल थ्री जैसे मान सेवेंटी वाला जो लीजिए, था ना कि उसको नहीं नहीं कश्मीर नहीं पार्ट ऑफ नहीं, इंडिया है कि आप ये नहीं है, वैसे ही तो समझिए, आप ये वैसे ही समझिए कि कंट्री ने आपको पानी तो दे दिया, बिजली नहीं दी। तो फिर जब बात ये आती है कंट्री ने आपको बिजली नहीं दी, पानी तो दे दिया, तो आप बोल रहे हैं साला दिया ही क्या है मुझे। ये भी ले लो मुझसे, मेरे को 7 बजे नहीं चाहिए, मैं तो 9 ही बजे पानी लूंगा। सरकार, देश कहता है कि भाई 8 बजे नहीं मिल सकता, तो कहता है मेरे को मिला क्या है आज तक यहाँ से, मेरे को तो निकाल दो, मैं तो देश छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये सिडिशन है, ये, इसे थैंकलेस सिडिशन इसे कहिए, कि आपका भारत माता के प्रति जो झुकाव, जो लगाव और जो आपका समर्पण होना चाहिए। वही बात है कि डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री हैज गिवन टू यू, आस्क व्हाट यू कैन गिव टू द कंट्री। लेकिन आप कहते हैं भाई मैं तो नहीं, मैं तो 9 बजे के बाद ही दूंगा कंट्री को जो कुछ देना है, उससे पहले तो मैं तो ना दूंगा। हम कह रहे हैं भाई कोशिश कर लो, नहीं जी, इसका मतलब आप यही कहना चाहते हो निकालना तो हमें सब जगह से निकालो, तो मतलब ये सिडिशन नहीं। इसे कहते हैं अधूरा सोच, अधूरा ज्ञान और अपरिपक्वता। तो इसलिए वो बात मैं कह रहा हूं, आप क्वेश्चन कीजिए, लेकिन क्वेश्चन के पीछे भी हाँ आधारशिला सर, होनी चाहिए। अंडरस्टूड। तो ठीक है, ये भी अच्छा लिखा, लेकिन वही बात है कि और ज्यादा इनमें जूस आएगा इन आंसर्स में थोड़ा सा। आप अभी देखते हैं आगे। सिटीजन पार्टिसिपेशन इज की टू सक्सेस ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन रूरल इंडिया। देखिए आ गया। अब सिटीजन पार्टिसिपेशन कैसे, सक्सेस ऑफ ई गवर्नेंस डिपेंड ऑन इम्प्लीमेंटेशन, एक्सेप्टेंस। In all introductions are very good. They are very brief. They are to the point. They have got very keywords. Technical know-how and delivery, like in case of banking correspondent, common service center, training to rural population, role of youth. चलिए आगे, बहुत बढ़िया। चलिए, और आप इसको अच्छा कर सकते थे, आप कह सकते थे कि गांव के स्कूलों की पढ़ाई थोड़ी ढंग से की जाए, वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप से थोड़ा जोड़ के उनको लाया जाए, उनका एक दिन का कोई सेशन रखा जाए, उनसे लगातार पूछा जाए महीने में एक बार। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लॉक समिति है उससे बोले, और ब्लॉक जो है पंचायत से बोले, उसको एक अभियान बनाया जाए। ऐसा आप सिंपल लिख सकते हैं। आप सिर्फ एक टेक्निकल एक्सपर्ट नीति आयोग के कंसल्टेंट की तरह आंसर मत लिखिए, क्योंकि नीति आयोग का कंसल्टेंट ऐसा लिखेगा, उसके आंसर में हमेशा वो वो बात नहीं होगी कि ये इंप्लीमेंट कैसे होगा। जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होगा वो सॉल्यूशन भी बताएगा, वो नीति आयोग का कंसल्टेंट नहीं बता सकता। उसके बस की टेक्निकल चीज लिखनी है, पर पॉलिटिकल जो डायकोटॉमी या जो सोशियो कल्चरल बैरियर्स वो नहीं है। अब आपको इंग्लिश ही नहीं आती, तो आप कैसे आप फोन यूज करेंगे, हिंदी का तो सारा फोन है नहीं, कीपैड पे एबीसीडी है, मैं तो अक्षर नहीं पढ़ पाता। या फिर मैं तो बिहार से हूँ, मैं तो तमिलनाडु से हूँ, तो कैसे होगा। तो यानी हर जगह डिजिटलाइजेशन के चैलेंजेस डिफरेंट है। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल एड, ये सब कुछ बहुत अच्छा लिखा आपने। फंड अवेलेबिलिटी, पीपीपी मॉडल, लेटरल अपॉइंटमेंट्स, ऐसा नहीं है। आप बोल सकते हो कि गांव में अगर ऋण बेचना भी है, गांव में अगर अमेजन जा रहा है, टीयर 2 टीयर 3 तक अमेजन पहुंच चुका है, फ्लिपकार्ट पहुंच चुका है, इंस्टाग्राम पहुंच चुका है, तो साथ साथ में आरबीआई देता है ना, जागरूक बनिए। कंज्यूमर डिपार्टमेंट भी रोल प्ले करता है, साथ साथ में रोल आपका प्राइवेट सेक्टर का भी है, एनजीओ का भी है, तो उनको आप ले आती है एक एक लाइन, तो आपका काम हो जाता। लेकिन वैसे भी अच्छा है, आई एम नॉट तो डिनाइंग वो दैट, बट मेंशन किया है मैंने ये एड्स के, उसमें आरबीआई की एड्स आती हैं और वो सब। हाँ, लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन वो वैसे ही दिखना भी चाहिए। चलिए आगे। How far do you think aspirational district program have been able to achieve its objective since its inception? Aim to develop 100 most backward to further upthrust the benefits of district level aspiration program was launched. Last mile connectivity achievements आपने बताया,
हेल्थ केयर, आशा, पक्का हाउस, आंगनवाड़ी, चलिए आगे चलिए, बहुत अच्छा, चलिए आदि महोत्सव, चलिए आगे चलिए आगे चलिए। इक्विटेबल रीजनल ग्रोथ, अडॉप्ट ए विलेज प्रोग्राम, सोशल ऑडिट, डिजिटाइजेशन, ये था हाउ फार। तो आपको करना चाहिए था जो बीच के जो कुछ एलिमेंट हैं जिनको मान लो पा भी लिया गया है, अगर पक्का घर भी बन गया है, तो अब नेक्स्ट गोल होना चाहिए जेंडर इक्विटी को उठाओ, नेक्स्ट गोल होना चाहिए बच्चा स्कूल लगातार जाए और पढ़ के आए, ऐसे करके आपको उसको जोड़ना था। हाउ फार। तो हाउ फार का मतलब दो तरह का है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है सोशल, एक है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें फार में आप जोड़ सकते थे। इंटीग्रेशन ऑफ अमृत एंड स्मार्ट सिटी मिशन, ये अच्छा है, बड़ा वर्ड है, लेकिन बीच में आप सिंपल भी लिख सकते थे। आप लिख सकते थे कि उस डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, उस डिस्ट्रिक्ट का जो मेन प्रोडक्ट है, कोई भी हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट है, कहीं जूट है, कहीं हनी है, कहीं पर जो है तेंदू पत्ता है, कहीं पर जो है कुछ है, कहीं पर टेम्पल टाउन है, तो वो जोड़ो ना। कहीं पर हो सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, तो वो आपको सोचना चाहिए था, उस लेवल तक जाना है। टेक्निकल हैज टेक्नोलॉजी हैज क्रूशियल रोल टू प्ले इन एडवांसिंग द एनजीओ सेक्टर एंड इंप्रूविंग आउटकम्स फॉर बेनिफिशरीज, डिस्कस विद एग्जांपल्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। तो आपने एनजीओ, टेक्नोलॉजी और बेनिफिशियरी ट्राइड कैन हेल्प इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शेयरिंग रिस्पांसिबिलिटी बिटवीन एनजीओ एंड गवर्नमेंट। टेक्नोलॉजी ऑगमेंट्स एनजीओ वाइडर रीच इन हिली टेरेन ट्राइबल एरिया, तो बोलते हैं ना, कौन सा उत्तराखंड बोल रहे हो कि लद्दाख बोल रहे हो कि आप अरुणाचल प्रदेश बोल रहे हो, कौन सा? एक्सपर्ट सर्विस विद इंटीग्रेशन टेलीमेडिसिन सर्विसेज बोल रहे हो, तो कहाँ बोल रहे हो? कहाँ? चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो श्रॉफ फाउंडेशन प्लस ग्राम सेवा ट्रस्ट, ये अच्छी बात है, गुजरात का आपने एग्जाम्पल दिया। ग्राउंड चैलेंजेस विद गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड एनुअल रिपोर्ट्स, एसर बाई प्रथम एनजीओ, ठीक बात है। फिजिकल मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज इन इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, आ गया है आपका, मेन पिलर्स रेडी हो गए हैं, दे नीड टू बी नाउ पॉलिश्ड एंड कनेक्टेड विद ईच अदर। चलिए आगे। डिस्कस implications associated with the entry of foreign education institutions for technical and higher education in India. NEP, फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैंपसेज इन इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया का आपने बिल्कुल अच्छा एग्जांपल बताया गुजरात में, सर्टेन इम्प्लीकेशंस हैं। एक बात आपने बोली, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स एक्सेसिबल ओनली टू एलीट क्लास। तो आप ऐसा लिखो कि ऐसा कहीं हो ना जाए, आप कहना चाह रहे हो कि इट इज एक्सेसिबल ओनली टू एलीट क्लास, आपने फाइनल स्टेटमेंट दे दिया। बात ये भी हो सकती थी ना, शायद ऐसा ना हो, इसकी कोशिश होनी चाहिए। वाइडनिंग डिवाइड इन हायर एजुकेशन, ये भी आपने वही बात की, अरे डिवाइड गैप खत्म भी हो रहा है, झारखंड जैसे तो बाहर भेज रहे हैं, तो वहां के लोग पढ़ के वापस आके भी तो यहाँ पे गैप कम हो सकता है ना, तो मतलब आपको पॉजिटिव ही देखना है उसके अंदर भी जबरदस्ती। एजुकेशन इज अ पब्लिक गुड नॉट अ प्रॉफिट मोटिव ड्रिवन। तो रेगुलेशन, ठीक बात है, चांसेस ऑफ कार्टलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैन डिस्टॉर्ट द कैपेबिलिटीज ऑफ मा, दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। ये सब सोच के नहीं किया गया, सोच के ये किया गया है जो हाई एंड प्रैक्टिसेस हैं, जो हाई एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आइडियाज हैं, वो भारत के कोने तक कैसे आए, वो भारत का स्टैंडर्ड कैसे रेज हो, उस दिशा में आप सोचो ना। R&D का माहौल कैसे बने, वो पैशन कैसे आए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पॉजिटिव इंप्लीकेशन सोचिए आप, इंक्रीज इन द सीट इन प्रोपोर्शन विद राइजिंग पॉपुलेशन, एडवांस स्किल एजुकेशन सर्विसेज, मिटिगेट ब्रेन ड्रेन फ्रॉम इंडिया, बूस्ट टू R&D, अच्छे आपने पॉइंट डाले, रिड्यूस स्किल्स मिसमैच, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। तो यानी और रेशनैलिटी आनी चाहिए, और प्रैक्टिकलिटी आनी चाहिए, और इंडियनाइजेशन आना चाहिए। चलिए आगे। द फ्लोरिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड लैटिन अमेरिका हैज बिकम क्रिटिकल एलिमेंट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ग्लोबल हॉटस्पॉट, एनर्जी सिक्योरिटी, सबसे पहले आप डेमोक्रेसी को लेके आते कि डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं दोनों की, इंडिया इज अ ग्रेट बूस्टर। और एनर्जी सिक्योरिटी, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ब्राजील के साथ बोला आपने, ट्रेड बोला, लिथियम अर्जेंटीना, बिल्कुल आगे चलिए आगे चलिए। फॉरेन पॉलिसी बोला तो आप और ब्रॉड लेके आ सकते हैं, चलिए चलिए आगे चलिए। इशू ओवर फ्यूजिटिव्स हिडन इन कंट्रीज लाइक क्यूबा, सैन डियागो इन चिली, ठीक है चलो। एक्स्ट्राडिशन प्रोविजंस आर नॉट ट्रांसपेरेंट, तो आपने फिर से डायरेक्टली वो कर दिया, तो आप उसको ऐसे डायरेक्टली मत कीजिए। आप बताइए, ये शब्द अगर आप भारत सरकार की तरफ से पढ़ते हो तो बात और है। आप इंडिया लैटिन अमेरिका का जोड़िए, कैसे इंडिया लैटिन अमेरिका दोनों ग्रोइंग हैं, कैसे दोनों के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कैसे दोनों ने डीकोलोनाइजेशन के बाद अपने आप को मोल्ड और मोटिवेट किया, सिर्फ ब्राजील ही नहीं, बाकी भी आप ला सकते थे। डेट ट्रैप पॉलिसी impacts India's interest in neighborhood,
ठीक है, चेकबुक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जब आपको दोबारा रिविजिट करना है तो प्लीज रिविजिट कीजिए, उसके लिए कोई टाइम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। इकोनॉमिकली अनवायबल अनस्टेबल इकोनॉमीज, चलिए आगे चलिए। इम्पैक्टिंग इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मैप इज एप्रिशिएटेड, चलिए आगे। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, चलिए आगे। सेफ्टी ऑफ इंपॉर्टेंट सी लेन्स, चलिए। डॉकिंग ऑफ चाइना रिसर्च वेसल्स, चलिए। मिलिटराइजेशन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए आगे। इंडिया फॉलोज डायमंड नेकलेस थ्योरी विद पोर्ट इन ओमान, ठीक बात है। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस स्ट्रेंथनिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, बिम्स्टेक, आई थिंक ऑन ट्रैक, बढ़िया। लेकिन इसमें भी आप ला सकते थे, उन कंट्रीज का भी नाम ला सकते थे। श्रीलंका खुद ही बोल रहा है कि कैसे उसको अभी इकोनॉमिक ट्रैप में वो फंसा, उसका एक लाइन आ सकता। आप उसी उन्हीं कंट्रीज के आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से लिख सकते हैं। पाकिस्तान का नाम भी आप लिख सकते हैं, पाकिस्तान को भी पता है, पता सबको है। तो आपको ऐसे लिखना है कि गाली भी नहीं देनी, लेकिन आपको बात को भी रखना है। डू यू एग्री विद द व्यू दैट देयर इज नीड टू इनेक्ट ए न्यू लॉ? चलिए आगे। देयर आर प्रोविजंस रिलेटेड टू इंश्योर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी। देखो ये कॉन्फिडेंस डिफरेंस है, आपने जैसे लिखा उससे डिफरेंट तरीके से लिखा है यहाँ पर आंसर। आर्टिकल 124, रिमूवल ऑफ जजेस इन केस ऑफ मिसबिहेवियर, सीधी बात की एकदम। जुडिशरी इम्पार्शियल रहनी चाहिए, तो इसीलिए रादर देन इनेक्टिंग द न्यू लॉज वी कैन मेक अमेंडमेंट्स अगर जरूरी है तो। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, अगर कंट्रोवर्सी अराइज होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नया लॉ बनना चाहिए। बहुत अच्छा व्यू पॉइंट आया, बहुत अच्छा एनालिटिकल पॉइंट है। जुडिशरी फाइनल इंटरप्रेटर है किसी भी डिस्प्यूट के केस में, इसीलिए इमोशन नहीं होने चाहिए, रेशनल और लॉजिकल बात होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, चलिए आगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सिटीजन चार्टर, ब्यूरोक्रेट फॉलो करते हैं, इसलिए जज के एथिकल कंडक्ट में भी आ जाए तो कोई बुराई नहीं। टू ब्राइबरी की जो बात है इन द सिस्टम, उसके लिए आप सोच सकते हैं कोई सिस्टम बनाने के लिए। ई कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सिंगल प्लेटफॉर्म, आई थिंक ये भी अच्छा आंसर लिखने की कोशिश की, इसमें स्कोर भी आएगा क्योंकि आपने जेन्युइन एक तरीके से लिखने की कोशिश की, रादर देन ब्रिंगिंग ऑल द फैक्ट्स एंड डेटा। जैसे पहले आंसर में बहुत सारा डेटा था, उसका कुछ डेटा यहाँ आ जाए और इसका एक जो एसेंस है अगर पहले आंसर में आ जाए, एक दो लाइन या तीन लाइन में, तो आई थिंक इट विल बी अमेजिंग। सो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकंसाइलिंग फंडामेंटल राइट्स विद डीपीएसपी, अगर हम इसकी बात करें, टफ टास्क है। आगे चलिए। आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 31 to 51 लिख दिया। इंटर रिलेशनशिप है, चलिए आगे चलिए। केरला एजुकेशन का एग्जांपल दिया 1957 का। कॉन्फ्लिक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, पहले आंसर में मानसी ने भी मेंशन किया था। उसके बाद अनअवॉइडेबल केस 2 में चंपक दुरे राजन केस की बात की, ये भी अच्छा एग्जांपल है। केस 3 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, तो सीक्वेंस देखिए कितने आराम से दी है। आई थिंक दिस ऑल्सो शुड बी अप्रिशिएटेड। मिनर्वा मिल, यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रीट किया, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है लेकिन इट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। तो देयरफॉर पहले जो क्वेश्चन था, जो पहला आंसर लिखा गया था और ये जो आंसर लिखा गया है, इसमें फर्क ये है कि पहले वाले में डेटा और भी था लेकिन इसमें फ्लो है थोड़ा और इसमें डेटा थोड़ा सा कम है लेकिन इसके अंदर कनेक्टिविटी दिख रही है। चलिए आगे। पीएमओ की बात करते हैं 150 वर्ड्स में। एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बहुत अच्छा पॉइंट है। रियल एग्जीक्यूटिव एक्टिंग है, पीएम एक रियल लिंक है प्रेसिडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, सिंपल पॉइंट है। कंप्लेन हैंडल करते हैं, उत्तराखंड टनल रेस्क्यू, वंडरफुल पॉइंट एंड ऑन ट्रैक। पीएमओ ने कैसे पॉलिसी और बाकी चीजों की बात करते हैं, पीएम मातृ वंदन योजना, पीएम ऑफिस अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर सुपरवाइज द फंक्शनिंग। चलिए आगे चलिए। फलक्रम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वंडरफुल लाइन, तो यानी फास्ट ट्रैक करना है, पॉलिटिकल बायसेस को दूर रखना है, पब्लिक के ऊपर आपको अगर एक तरीके से समझना है पब्लिक वेस्टेज कम कैसे करनी, तो आई थिंक वेरी गुड, आई थिंक गुड एफर्ट्स, वंडरफुली रिटन। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद जब आप री एग्जामिनेशन की बात करते हो, आर्टिकल 124 आईपीसी जिसकी हमने बात की थी सेडिशन की, अब हम यहाँ देखते हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट अच्छा वो लिखा ही नहीं। सिटीजन पार्टिसिपेशन इज की टू सक्सेस ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया, रूरल इंडिया, तो माई गवर्नमेंट की बात की इन्होंने। कॉन्फ्लिक्ट और ओपिनियन को समझने की बात की अगर होता है तो। चलिए आगे। फैक्ट चेक की बात की, कॉमन सर्विस सेंटर की बात की, ई पंचायत तो पहले आंसर की तरह है, पहले वाले में बल्कि और भी ज्यादा फैक्ट्स थे। चलिए आगे। कोलैबोरेट, इन्फॉर्म, कंसल्ट, एम्पावर, चलिए लेकिन ऊपर वाली भाषा भी यही है। देयरफॉर बेनिफिट्स ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन आर रीच टू द ग्रास रूट लेवल में रिड्यूस, तो ऊपर बात ऑलरेडी बोल चुके, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे। हाउ फार, देखिए हाउ फार एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल उन्होंने बताया कि ये बन सकते हैं।
प्रोग्रेसिव हैं एसेंस में। उसके बाद आपने बताया कि वो वर्क हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, आशा, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हरियाणा का नूह डिस्ट्रिक्ट, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। तो कोशिश अच्छी की, लेकिन पहले वाले आंसर में काफी एलिमेंट्स थे जो हमने पहला सेट पढ़ा था, इसके अंदर थोड़े से कम है, लेकिन कुछ चीजें जुड़ रही हैं। टेक्नोलॉजी हैज ए क्रूशियल रोल टू प्ले इन एडवांसिंग एनजीओ सेक्टर। टेक्नोलॉजी मेक्स इट इजियर फॉर एनजीओ सेक्टर वर्ल्ड वाइड यूज थ्रू वेब एप्लीकेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, फिनटेक एडवांसमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, ऑनलाइन। ठीक है, पहले आंसर की तरह कहूंगा मैं, कुछ चकाचौंध आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया नहीं है, वो पहले में भी नहीं था, दूसरे में भी मुझे नहीं मिल रहा है। टेक्नोलॉजी मेक्स इट इजियर टू कॉन्टैक्ट, बात तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे कुछ मुद्दों को लाने की बात कीजिए जो टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं थे, तो आपका आंसर स्पेशल बनेगा। डेटा कलेक्शन, कोलैबोरेशन, ब्रिजिंग द गैप इन अडॉप्शन एंड प्रोटेक्शन, आई थिंक ऑन ट्रैक, एवरेज आंसर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे। डिस्कस implications and association of the entry of foreign education institutions for technical and higher education in India। तो implications पॉजिटिव सोच के करना है और बॉटल नेक को थोड़ा सा बताना है सॉल्यूशन के साथ। फी तो आपने, चलो इन्होंने बताया कि फी ज्यादा होने के कारण हेक्टिक हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, स्कॉलरशिप, इनकम टैक्स क्राइटेरिया, सरकार उसके लिए कोई ना कोई रोल प्ले करेगी, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग मोड, फुल टाइम प्रोग्राम, फॉरेन इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज। चलिए आगे। ऑस्ट्रेलियन, इन्होंने भी एग्जांपल दिया गुजरात का। न्यू कल्चर ऑफ इनोवेशन रिसर्च, तो ठीक है, लेकिन आपने अपने आप को वहां का स्टूडेंट भी नहीं माना, अपने आप को वहां का प्रोफेसर भी नहीं माना, और ना आपने ब्यूरोक्रेट माना। ये सब आपने बिना सोचे आंसर लिखा, इसीलिए कुछ एलिमेंट मिस हो गए। फ्लोरिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड लैटिन अमेरिका, चलिए देखते हैं इसको। इंडिया बर्गोइंग इकोनॉमी रिक्वायर्ड अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, चलिए गोल्ड भी है, क्रूड ऑयल भी है, आ रहा है। ओएनजीसी की बात आप कर सकते हो, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को बेनिफिशियल है। काउंटर प्रोडक्टिव टुवर्ड्स चाइनीज चार्ज, ठीक है, चलिए माना, एक पॉइंट ये है। उसके बाद वाइडनिंग द स्कोप ऑफ एक्सपेंडिंग कोऑपरेशन इंडियाज फार्मा सेक्टर, आई थिंक अच्छी कोशिश की, लेकिन पहले आंसर की तरह ये भी कोशिश कर रहा है ऊपर आने की बहुत, लेकिन ज्यादा ऊपर आ नहीं पाए। डेट ट्रैप, क्रेडिट नेशन, ठीक है, चलिए। अडॉप्ट अडेप्ट इकोनॉमिक, चाइना की बात की, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, चाइना डेट ट्रैप, डिप्लोमेसी, इंडिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी, चलिए आगे। चलिए आगे। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, अनसस्टेनेबल फाइनेंसिंग, चलिए। इंटरनेशनल कॉस्ट। तो देखिए, आप जब ऐसा कोई आंसर लिखते हैं तो आपको लिखना चाहिए कि प्रॉब्लम ये है, डाइकोटॉमी ये है कि आसपास के जो नेबरहुड नेशंस हैं वो शायद इस बात को जानते हैं कि चाइना की डेट ट्रैप में हम फंस सकते हैं, लेकिन क्या उनके पास ऑप्शन है, या क्या वो इस बात कोई भी समझते हुए नहीं करता है। श्रीलंका ने भी समझते हुए नहीं किया था, हो जाता है। कोई आदमी जानबूझ के गलत नहीं करना चाहता। अगर मान लीजिए श्रीलंका कह रहा था कि सर मुझे लोन चाहिए 7 बजे, और चाइना बोलता है मैं तो 9 बजे दूंगा, लोन तो गलत है, लेकिन श्रीलंका इस बात समझ नहीं पाया कि भाई तू डूब रहा है। उसने बोला मैं तो 9 बजे लूंगा, मैं तो 8 बजे मैं तो टी गार्डन जाके टी तोड़ता हूँ, तो भाई तोड़ ले टी, लेकिन लोन तो लोन है। तो कोई भी आदमी जानबूझकर गलत नहीं करना चाहता, लेकिन वक्त और उसको इतनी एक्यूमेंट होना चाहिए कि वो समझ पाए। तो इसीलिए आप आंसर में समझिए कि क्या मांग रहा है, ये नहीं कि बस आप लिखे जा रहे हो, पता ही होता गलत क्या है तो फिर बात ही क्या है। आप समझे मेरी बात को। चलिए, डीपीएसपी के साथ मौलिक अधिकारों का संवैधानिक रूप से सामंजस्य की बात करें, भारत जैसे विशाल, चलिए आगे। बिल्कुल अंकुश, आपने पहला पैराग्राफ में बताया आपने। भाग 3 भाग 4, चलिए आगे, चलिए। प्रासंगिक केस भी आपने बताया, चलिए आगे। चलिए आगे। गोलकनाथ, मिनर्वा मिल, मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही बात है, चलिए आगे, चलिए चलिए। अनुच्छेद, लेकिन आप में से कोई ये चर्चा क्यों नहीं करता कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो फंडामेंटल राइट के दूसरा रूप है, किंतु भारत के रिसोर्सेज, भारत की जो ग्रोथ है, भारत की जो लिमिटेशंस हैं, उसकी वजह से उनको हम रख नहीं सकते थे, इसीलिए वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको डायरेक्ट करने के लिए बनाए। एक तरीके से वो फंडामेंटल राइट्स की सोल हैं। जब डीपीएसपी इंप्लीमेंट हो जाएगा तो आपके फंडामेंटल राइट अपने आप प्रिजर्व हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो पीएमओ द्वारा उठाए जाने वाले कार्य, प्रशासनिक मुखिया, सलाह, चलिए आगे। सेतु, चलिए आगे। केंद्रीय मंत्री, चलिए आगे। संविधान, चलिए आगे। राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा नीति, चलिए। पीएम अध्यक्ष, ठीक है, अच्छा है। ई गवर्नेंस, पारदर्शिता, नागरिक, राष्ट्रीय राज्य, भारत में लगभग 70% कार्यबल बिल्कुल ग्रामीण में, लेकिन आपने तरीका कहाँ बताया, आपको तरीका बताना चाहिए था ना कि कैसे होगा। गांवों में गांव में टेली सेंटर स्थापित किए गए जिनके माध्यम से आईसीटी, ठीक बात है। फोकस ऑन इंडिया, ई नाम,
सहभागी शासन की नीति को लागू किया गया, मौसम संबंधित जानकारी के साथ साथ अन्य सुविधाएं दी गई, रिकॉर्ड कंप्यूटर करना, ई जिला, ई ऑफिस, सरकारी योजनाओं नीतियां। चुनौती क्या है? बुनियादी सुविधाओं का अभाव, गोपनीयता, सुरक्षा, डिजिटल डिवाइस का होना अनिवार्य, और ये विश्वास सरकार जो कर रही है उससे मेरा भला होगा, और उसके बाद उनके लिए एक्सेसिबल होना। सिंपल बात आपको लिखनी चाहिए थी, जो पहले और दूसरे आंसर में भी थोड़ी बहुत थी, आपके में भी है। खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले उनकी आपने बात की, समावेशी विकास की बात की, बिल्कुल सही बात है। कौशल, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, पोषण, कृषि, जल संसाधन, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की बात, सरकारी निजी कंपनियों की भागीदारी, बहुत अच्छा लाइन है, मानसी या बाकी लोग भी इसको देख सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को गांव में एक रात ठहरने का प्राविधान, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। क्षेत्र में नेताओं का को गांव में अडॉप्ट करना बहुत अच्छा है। समावेशी विकास के लिए 5 प्राण 9 महत्वपूर्ण मुद्दों को, तो यानी ये आंसर पहले के आंसर के मुकाबले थोड़ा और ऑर्गेनिक हो गया। हरियाणा में 7 स्टार योजना पंचायत स्तर पर लागू की गई, तो आई थिंक आई लाइक इट। पहले आंसर्स के मुकाबले इस आंसर के अंदर 1-2 ऑर्गेनिक पॉइंट ज्यादा थे। चलिए आगे। उसके बाद आपने एनजीओ के क्षेत्र में लाभार्थियों की परिणाम और जो आपने चर्चा करने की बात की, संगठन, सलाहकार, दान, सामाजिक मुद्दे, एनजीओ की जमीनी स्तर पर कार्य कर महत्वपूर्ण भूमिका, हेल्थ केयर, टेक एनजीओ, कृषि तकनीक एनजीओ, विभिन्न एनजीओ द्वारा अपना पोर्टल बनाया गया। आई थिंक प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो दिव्या के आंसर से हम देख सकते हैं कि जेन्युइनली प्रैक्टिकल ग्रास रूटेड अप्रोच से आंसर कैसे लिखा जाता है। तो आई थिंक ये एलिमेंट हम सब लोग देख सकते हैं। नई शिक्षा नीति, विदेशी विश्वविद्यालयों की बात, भारत ने नए खोलने की बात की, समस्या पर रोक लगेगी, पलायन को रोकने का बात है। पहला विदेशी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में आपने बात की, गुणवत्ता के साथ कौशल की बात की, यूजीसी नियमों की बात की। उसके बाद आपने विकल्प देने की बात की, अधिक फीस की वजह से बाहर जाकर नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो इन्होंने ये बोला कि फीस आपको बाहर नहीं देनी पड़ेगी, हमने लिखा कि भाई हमारे पास ही पैसे नहीं होंगे, हम ही शायद नहीं पढ़ पाएंगे। तो सेम बात का अप्रोच कितना डिफरेंट है। भारत और लैटिन अमेरिका, आर्थिक सामाजिक ऊर्जा, चलिए आगे। आर्थिक हित लैटिन अमेरिका तांबा, सामरिक हित ऊर्जा। आई लाइक द डिवीजन, डिवीजन आपने अच्छा किया, इस तरीके से डिवीजन होना चाहिए, और फिर कंक्लूजन होना चाहिए था, जैसे मानसी ने अच्छे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दिए थे। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, उसके बाद आपने बताया निम्न और मध्य आय वाले देशों को ऋण देकर उन्हें ऋणग्रस्त बनाता है। चीन द्वारा प्रायोजित लगभग सभी योजनाओं में समस्या श्रम उल्लंघन, बात आपकी ठीक है। भारत के लिए चिंता क्या है? आपने चीन की 5 फिंगर नीति, श्रीलंका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, म्यांमार में पश्चिम बंगाल हैबन टोटा, बात तो आपकी ठीक है। हिंद महासागर, ग्लोबल साउथ, लेकिन सभी लोग सिर्फ फैक्ट्स लिख रहे हैं। सभी लोग अगर यही लिखेंगे तो आप बोलिए एग्जामिनर के लिए कितनी बड़ी दुविधा होगी, और स्कोर ज्यादा कैसे दे। तो वी हैव टू ब्रिंग सर्टेन कनेक्टिंग एलिमेंट्स आउट ऑफ द बॉक्स, हल्का सा लिखना पड़ेगा। दिस इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए आगे। आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन फॉर सेपरेशन, चलिए ठीक है। ये नीड हैज बीन रिफ्लेक्टेड फॉर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ओवर जुडिशियल केसेस, डिले इन जुडिशियल, रैम्पेंट करप्शन एट 3 टियर जुडिशियल। रैम्पेंट करप्शन, ये शब्द हम जब प्रयोग कर सकते हैं जब या तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, या फिर आपका लॉ कमीशन, या फिर आपके न्यूज़पेपर्स में डायरेक्ट आया हो, या फिर उस बात को मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया गया हो, तो इस तरह की भाषा का हम प्रयोग नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट की तरफ यदि हम जाएं, तो सेकंड पॉइंट की तरफ अगर हम जाएं, मिसमैनेजमेंट इन बेल प्रोविजंस, मिसमैनेजमेंट नहीं है, वो एक कल्चर है जिसको ठीक करने की बात सुप्रीम कोर्ट बार बार हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को बोलता है। और उसके बाद आपने बात की कि नो लीगल ऑब्लिगेशन, नो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट ऑन जुडिशियल सिस्टम। अब पार्लियामेंट के पास अगर जुडिशियल सिस्टम की रिपोर्ट जाएगी तो ये बात आपको किसी एविडेंस के साथ लिखनी चाहिए। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और उसके साथ साथ बाकी प्रोविजंस के थ्रू भी है। और आपने जैसा बताया 124, 127, आर्टिकल 235, CJI बालाकृष्ण, थ्योरी ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट टू मेंटेन सेपरेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन स्पेशलाइजेशन, डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट्स, बार काउंसिल एंड कोलिजियम। Therefore, a separate law to enforce is not constitutionally sanctioned under Article 50, but the constitution mandate of and people-centric judiciary should be highlighted. Okay, कोशिश अच्छी है। फंडामेंटल राइट्स और DPSP हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सबने ऊपर भी लिखा यही। चंपक दुरेजा केस भी लिखा, उसके बाद DPSP की बात हुई, इम्पैक्ट की बात हुई, गोलकनाथ केस भी सबने ऊपर ऐसे ही लिखा जैसे इन्होंने लिखा। मेड फंडामेंटल राइट सब्सिडियरी, इन्होंने भी वही बताया, सुप्रीम कोर्ट आपका प्रोनाउंसमेंट भी वही बताया, केशवानंद भारती 1973 आर्टिकल DPSP के थ्रू आपने बताया। मिनर्वा मिल की बात की आपने भी, ऊपर भी यही बात हुई थी। तो आंसर मैं वही कहना चाहता हूं कि ये सारी जानकारी के बावजूद भी आप अपने आंसर को इनोवेटिव और यूनिक कैसे बनाएंगे, ये सोचिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस,
डी फैक्टो रूलरशिप ऑफ इंडियन रिपब्लिक। नहीं, वो रूलरशिप, डी फैक्टो रूलरशिप जब बन सकता है जब प्राइम मिनिस्टर ऐसा उसको चाहते हैं। किसी के टाइम पर सिर्फ वो सेक्रेटरीट रहा है, किसी के टाइम पर वो गाइडिंग लाइट की तरह रहा है, किसी के टाइम के अंदर वो सेंट्रलाइज चैम्बर बन गया है। तो ये आपको सीखना और सोचना पड़ेगा क्या लिख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन है, फर्निश ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो स्ट्रक्चर अच्छा है पीएमओ का जो आपने स्ट्रक्चर बताया, लेकिन मानसी के आंसर में प्रैक्टिकल अप्रोच थी, यहाँ पर जो है एक थ्योरेटिकल अप्रोच है। तो कुछ कुछ आप वो दे सकते हैं, एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन एंड डिटेल स्क्रूटनी बाय पीएमओ ऑफ पार्लियामेंट्री बिल्स। अब पार्लियामेंट्री बिल क्या पीएमओ को वाकई देखने चाहिए, किस अधिकार से देखने चाहिए, वो एक सोचने वाली बात है। वो पॉलिसी के लिए सोच सकता है, प्राइम मिनिस्टर के डोमेन में जो चीज आती है, सरकार के डोमेन में जो आती है वो हो सकता है, वो भी बिना ब्रीच किए। डिवीजन विद एक्सपर्ट पोर्टफोलियो, ये बात बिल्कुल सही है। ओवरव्यू मैकेनिज्म ओवर, बिल्कुल ठीक बात है, आपने अच्छा लिखा। लेकिन इसके अंदर तारतम्य जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो अभी मिसिंग है। सेक्शन 124A की बात करते हैं, सेडिशन लॉ की बात करते हैं, डिसलॉयल्टी, हेटेड अगेंस्ट, ठीक है चलिए। केदारनाथ की आपने बात की, और अभी दोबारा बात हुई, अभी तो नया लॉ आ ही गया है। नॉट डिफाइंड, मिस यूज बाई एग्जीक्यूटिव पुलिस, स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस की आपने बात की, चलिए। फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रिवेंट करता है। तो आपको यू नो थोड़ा और आंसर आ रहा है, उसी डायरेक्शन में ट्रैक पे आ रहा है, रूलिंग के जैसे आपने बताया। एक्सट्रीमिज्म है, नीड ऑफ द आर आपने बहुत अच्छा है, ये एलिमेंट अच्छा है। इन कोर्ट प्रोविजंस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अलाउ फेयर क्रिटिसिज्म, आई थिंक दिस इज 3 इंडियन लॉज जो आपने अभी के बताया, तो आई थिंक दिस शुड बी अप्रिशिएटेड। सिटीजन पार्टिसिपेशन गवर्नेंस, जब हम इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट में एनजीओस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो ई चौपाल आपने अच्छा एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया, ई चौपाल इज ए गुड एग्जांपल। ज्ञान दूत मिशन की आपने बात की, एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट में, ये आंसर आपका अच्छा है, प्रैक्टिकल है। पीएम सर्वमित्र और किसान सम्मान निधि योजना, डिजिटाइजेशन, 6,000 एनुअल पेमेंट टू फार्मर्स, रियल डेटा एलोकेशन, पीएम जाय, चलिए। फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, SC/STs, वन विलेज वन सखी, चलिए। इनिशिएटिव्स लाइक किसान कॉल सेंटर, तो अच्छा है, पहले वाले आंसर्स से कुछ एलिमेंट यहाँ पर डिफरेंट है, इट कैन बी अप्रिशिएटेड। नीति आयोग 75th स्ट्रेटजी ऑफ इंडियन लेड डाउन एस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, किस हद तक बात हुई है, किस हद तक? तो बेसिक एमिनिटीज की आपने बात की, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की चलिए आपने बात की, लेकिन किस हद तक, क्या उसका वाकई फायदा हुआ, क्या उसका रियली में चेंज आया, ये बात अभी तक आंसर में मिसिंग है। तीनों पॉइंट ठीक है। सक्सेस रेट में आपने बताने की कोशिश की, इंक्रीज एनरोलमेंट, reduction in MMR cases, so I think on track, wonderfully written, good answer. Mainstreaming in the backward regions, vocal for local, SCZ, factor behind success, cooperative, competitive federal split, finance commission, horizontal devolution of funds, impact में आपने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इनिशिएटिव, ग्रोथ ऑफ MSME एंड स्टार्टअप, तो कोई एग्जाम्पल भी होना चाहिए था, जैसा कि दिव्या के आंसर में भी था। एनजीओ कैटलिस्ट है, ब्रेक थ्रू यानी कि सीमलेस डिलीवरी, आइडेंटिफिकेशन, डेटा कलेक्शन एंड एक्टिव ह्यूमन सपोर्ट। उसके बाद आपने बात की टेक्नोलॉजी क्रिटिकल रोल प्ले करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर की आपने बात की, कैन हेल्प, पीएम दीदी योजना की आपने बात की, एनिमल हस्बेंड्री की बात की, A2 मिल्क सप्लाई की बात की, लीगल अवेयरनेस की बात की, मैट्रिमोनियल केसेस, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, डिफरेंशिएबल चिल्ड्रन और वुमेन की आपने बात की, डिजिटल स्टैक की बात की। तो आई थिंक अच्छा आंसर लिखा। बात लेकिन वही है कि क्या ग्रास रूट के ऊपर वो रोजमर्रा की लाइफ में उसका पार्ट हो पा रहा है, हो पा रहा है तो कैसे, बस आपको ये बता। जब हम बात करते हैं यूजीसी NEP 2020 prescribes internalization of technical and higher education in India, positive implications, universalization, learning exposure, cross university seminar, inter university inter country की बात की, collaboration of academia, inclusion of digital, inclusion of global ideas and education, vocational and functional expertise, more employment avenue। जिंदल यूनिवर्सिटी और मणिपाल यूनिवर्सिटी की आपने बात की, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच हो जाएगी, टेक्निकल सोसाइटी बन सकती है, इंक्रीज शिफ्ट टुवर्ड्स कमर्शलाइजेशन। तो यानी आंसर के बीच में कनेक्टिविटी थोड़ी और चाहिए, फैक्ट्स थोड़े से कम चाहिए, और क्रीमी लेयर पहुंच पाएगा। रूरल और रिमोट स्टूडेंट मुश्किल होगा, तो उसके लिए भी प्रावधान किया जा सकता है। नेपोटिज्म तो होना नहीं चाहिए इस तरीके से, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स लाइक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन MOU विल बी हैविंग ड्यू चेक एंड बैलेंस टू अकोमोडेट इंडियन इंटरेस्ट इन दिस रिगार्ड। इंडियन इंटरेस्ट के लिए वो किया गया है। चलिए आगे। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हैज एसेंशियल फीचर्स लाइक ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट, जस्टिस फॉर ऑल एंड सेपरेशन ऑफ पावर। सारे आंसर जितने हमने लिखे तो उसका उन्होंने सार इन 3 पॉइंट में दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन गिव सुप्रीम कोर्ट पोजीशन ऑफ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
Judiciary should set higher ethical standard in the court. But in reality, there is divergence at times. Huge pendency है, opaque appointment in collegium system ऐसा executive कहता है, delay in justice, anglicized system अभी तो उसको change भी कर रहे हैं हम. Therefore steps लेने चाहिए. तो steps लेने के लिए हमें कानून को change करने की जरूरत नहीं है. Justice clock for transparency, CJI ऑफिस अंडर RTI, ई कोर्ट हो ही रहा है, मॉडिफाइड कोलिजियम, उसके बाद जो है डीकोलोनाइजेशन फॉर एफिकेसी ऑफ केसेस इन लोकल लैंग्वेजेस, बहुत शार्प और बहुत स्मूथ तरीके से लिखा गया. कॉन्स्टिट्यूशनलिटी रिकंसिलिंग फंडामेंटल राइट्स विद डीपीएसपी, अब हम उसकी बात करते हैं. तो न्यू रिपब्लिक, देखिए कितना अच्छा पॉइंट पहले बोला. चैलेंजेस बताए, इन्फोर्समेंट ऑफ डीपीएसपी वर्सेस अप हेल्डिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट अमेंडमेंट की बात की, यूज ऑफ 9 शेड्यूल दोनों एक साथ दे दिए, इससे जगह भी बची और इससे टाइम भी बचा. लैंड रिफॉर्म की बात की, उसके बाद 1915 में शंकरी प्रसाद केस की बात की कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज नो लिमिट सो फॉर कैन बी अमेंडेड. लेकिन गोलकनाथ केस में उन्होंने बोला पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड. तो इन्होंने जोड़ दिया, पैराग्राफ्स को थोड़ा स्क्वीज कर दिया. पार्लियामेंट ने 26 अमेंडमेंट किया एंड इट वाज हेल्ड दैट केशवनाथ भारती केस 1973 वाज गिवन वेयर शेड्यूल Supreme Court going to help Parliament can amend the Constitution provided it does not violate the basic structure of the Constitution. So इसीलिए इन्होंने सीक्वेंस से जोड़ा, बात वही लिखी है. श्रेया सिंगल केस 1980 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर शुड बी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. उसके बाद आगे आए हम, और फ्रॉम देन देयर हैज बीन अ बैलेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन, मार्केट फोर्स वर्सेस ईसीआई, राइट ऑफ प्राइवेसी वर्सेस. तो सीक्वेंस और फ्लो वैसे ही है, लेकिन थोड़ा स्मूथ है पहले से, ऐसा हम कह सकते हैं. पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी. उसके बाद आपने ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स की बात की, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, न्यूक्लियर एंड स्पेस, पीएम का एजेंडा, विकसित भारत, अमृतकाल. उसके बाद आपने बात की अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टोरल एंड पब्लिक सेंटिमेंट, एनकरेजमेंट एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप. देयरफॉर पीएमओ इज द ब्रेन, ये अच्छी लाइन है. एंड ओवर द ईयर्स इट इज द मैंडेट इन्फोर्सर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज फॉर द पीपल. और उसके बाद आपने रोल ऑफ पीएमओ हैज बीन क्रिएटिंग सेंट्रलाइजेशन इफेक्ट, जैसा कि हमने देखा अंडर प्रेजेंट गवर्नमेंट. सो क्वेश्चन अराइजेस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. मिनिस्टर्स वर्किंग डायरेक्टेड बाय पीएमओ, एग्जीक्यूटिव इन पावर, देयरफॉर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है, और रिटेंशन ऑफ रिटायर्ड ऑफिशियल्स, इट इज अफेक्टिंग द सीनियरिटी. तो आई थिंक इस आंसर को बाकी आंसर के मुकाबले स्कोर मिलेगा. नेक्स्ट आंसर वी आर टेकिंग अप इन आवर जस्ट कंटिन्यूइंग डिस्कशन.